out with him. To go out with him. And then eventually when we came to the theater, he's like, I have never waited for anybody for this much time. Yeah. You guys are late. And then anyway, we saw the film. I was sitting literally next to him. So that was another surreal moment of watching him and महाराज जी एक बार पहले बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर था मनोज बाजपेयी, लेकिन रिसेंटली चेंज हो गया क्योंकि मैंने वो फिल्म फेयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। अगर तुमने नहीं देखा रहेगा तो मैं बताता हूँ। फिल्म फेयर का एक रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सलमान खान गया था, और फिल्म फेयर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे सारे लोग हैं फिल्म फेयर के, ये बोलता है कि ये अवार्ड कुछ नहीं रहता। मेरे घर पे स्टॉपर नहीं रहता ना, तो हम लोग अवार्ड लगाते थे और वो लोग ऐसे भड़क रहे कि क्या चल रहा है ये। ऐश्वर्या और कटरीना बोल रहे हाँ हमने सही किया था, कि मतलब तुम समझ रहे हो फिल्म फेयर में जाके फिल्म फेयर को पेल रहे। पहले अपने बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। शूट। चलो पहला सवाल ये है, क्या मैं सुबह ब्रश करने से पहले चाय पीता हूँ? मुझे ये तो पता है तू ब्रश करने से पहले क्या पीता है और वो चाय नहीं है, तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा नहीं, तू ब्रश करके चाय पीता। आराम से मारे यार प्लीज। अच्छा मैं तुझसे अपने बारे में सवाल पूछता हूँ, क्या मैं अपनी नाक को छोटा करने के लिए रोज दबाता हूँ? छोटा करी तो दबाता है, लेकिन और बढ़ती जा रही है। दबाने से बढ़े ही दबाता हूँ, नहीं दबाता। नेक्स्ट। हाँ, मेरा पूरा नाम क्या है? सबको मालूम है, सलमान भाई खान। सही हो। सही कोई मारेगा तू। अपने बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। सक्सेस जब चली जाती है, it's very, very difficult to tame a human mind. So I was curious how humans behave. I wanted to study about that. I think I was in 3rd standard when I started cricket. After that, I took some cricket coaching near my house only. I went to modern school Barakamba. I'm a pass out from there. My family has, always pushed me to be, excellent in academics. Although I just couldn't deny my love for cricket, my passion for cricket, so that's what I wanted to do my whole life. I actually dropped my under 19 when I was in 12th standard. They actually had a lot of bets on, if you score well, we'll buy you a bat, or maybe, we can take you out for lunch or maybe a vacation. When I needed professional help, I, turned to Deepthi Dhyani ma'am. That's my coach. She actually guided me in a lot of things in terms of my diet, my fitness, and how you can actually handle things mentally as well as emotionally. I was very curious about human mind and how it processes. I watched a lot of series in psychology. I was in 9th standard when I, started liking this subject a lot. So I was curious how humans behave, how humans in a particular situation behave. So I wanted to study about that. And when I started studying about it, I was, very keen of understanding and, how we mentally process on the field and off the field. And it has helped me a lot in cricket as well. When I'm on field, before a match, there's a lot of self-talk, positive self-talk, what all I have to do in present and in future. Like when I'm batting, then also I, say myself, no, you're the best, you can do this. So that affirmation needs to be there. इस मूवी की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन मरते मरते बचे थे।
इस पूरी मूवी के ऑलमोस्ट 40% पार्ट्स में स्टंट इंक्लूड थे एंड इस तरह के सीन्स के लिए ऑलरेडी स्टंटमैन रखे जाते हैं। बट ऋतिक का मानना था कि अगर वो क्रिश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और फिल्म का इतना बड़ा सेक्शन कोई स्टंटमैन प्ले करेगा तो ऑडियंस को इन दोनों लोगों की बॉडी लैंग्वेज में फर्क दिखेगा, जिस वजह से उन्होंने सारे स्टंट खुद परफॉर्म करने का फैसला किया। Stunts was a big part of that character. All the flying and the jumping and all. You had to see that it's the same guy. एंड शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें ऋतिक को इस क्लॉक टावर के ऊपर से जंप करना था, बट जंप करने के बाद जिस हार्नेस से वो बंधे हुए थे वो टूट जाता है एंड वो 200 फीट की हाइट से सीधा नीचे गिरने लगते हैं। Yeah, I fell 200 feet. उस टाइम सिंगापुर में बारिश का मौसम था, जिस वजह से शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानों के बाहर इस तरह के कैनोपीज लगाए हुए थे एंड फॉर्चुनेटली ऋतिक एक ऐसे ही कैनोपी के ऊपर गिरते हैं जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। My cable snapped and I landed on a 6x4 canopy that had just come up because of a slight drizzle in the air, and that's what saved my life. And it was exactly 6 feet by 4 feet, and I fell head to toe exactly on it from 200 feet. So it was uncanny. ये सब तुम्हें क्या ना जादू? Thank you जादू. Thank you जादू. Thank you जादू. क्रिश मूवी की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल भी है, बहुत लोग देखते भी हैं। डायग्नोसिस आ गए हैं, ये पता चल गया है कि ऐसा है। अब मैं इसको व्हेन डिड दैट स्ट्राइक यू कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे पॉजिटिवली इसको, वो क्या मोमेंट था, मुझे सिर्फ जानना है कि कब स्विच हुआ कि आई थिंक जब मैं सर्जरी के लिए गई थी, माई डॉक्टर हैड सेड 8 hours. इट टुक 15 hours. They took me out. I remember in the corridor I was walking, everyone was standing there at the gate. और वो कॉरिडोर पे जाते जाते मेरे सिर्फ 3 रिएक्शन आए। ओह गॉड, ये लोग यही हैं? शिट, इन पे क्या बीती होगी। इट इज़ अ वेरी टफ जर्नी, बट जो आपके केयर गिवर्स हैं उनके लिए आपसे भी ज़्यादा टफ है। द मोमेंट आई गॉट डायग्नोज्ड, I decided that I'm going to normalize this journey of mine. And trust me, very, very humbly, I want to say this with folded hands and a lot of gratitude कि during my chemo cycles मैंने shoots किए, मैंने ट्रैवल किया, मैंने हर दिन वर्कआउट किया, अपनी डबिंग्स कंप्लीट की, रैम्प वॉक्स की, एंड इनफैक्ट टुडे आज यहाँ पर भी मैं अपना रेडिएशन का सेशन लेकर आई हूँ। मिस्टर इनफेमस को बहुत अच्छा कमेंट आया। वो बोलते हैं कि साउथ मूवी बॉलीवुड में इसलिए चल पाई क्योंकि शाहरुख खान जो थे 4-5 साल से ब्रेक पे थे और बॉलीवुड में इतनी अच्छी मूवीज नहीं आ रही थी। लेकिन रिसेंटली एनिमल के इवेंट पे तेलंगाना में एक वहाँ के सीएम ने खुला चैलेंज दिया है कि आने वाले 5 साल में बॉलीवुड डेड हो जाएगा, बॉलीवुड का नाम निशान खत्म हो जाएगा, तेलुगु मूवी और अपना साउथ इंडस्ट्री मूवी जो है राज करेगी। तो उन सबको मैं एक ही बात बोलूंगा, लुक, बिग रिस्पेक्ट फॉर साउथ मूवी, बिग रिस्पेक्ट फॉर तेलुगु मूवी, बट जो लोग ऐसी बात करते हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। जब तक बॉलीवुड में ये 3 बाप है ना, 3 खान, शाहरुख, सलमान, आमिर, जब तक बॉलीवुड में ये 3 खान है ना, किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं है बॉलीवुड को डेड कर सके। भाई जब शाहरुख नहीं चलता है ना तो सलमान चलता है, जब सलमान नहीं चलता है ना तब आमिर चलता है, जब आमिर और सलमान नहीं चलता ना तो शाहरुख चलता है। भाई वो 3 खान एक साथ में अगर चल गए ना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बॉलीवुड पे आंख उठा के देख ले। 5 साल। I'm not sure. You're not sure? That's your opinion. पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच, 20 विकेट निकाले, चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वन टुडे। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
begin. अभी तो सिर्फ हाय बोलूंगा आपको और ये बोलूंगा कि आप खुश रहें और फिर जब हम मीट करेंगे तो मैं आपको ग्रीट करूंगा बहुत जल्द। Up the order because all his success in the IPL. Beautifully punched to it. Right in position to play that shot back of a length, and that's something which he always fancies, Mandeep Singh. That's a quality shot from a young man. And it's not that bad a delivery. It'll get on top of his toes, on top of the bounce. And he has that extra bit of time when he plays the quicks. Up the order because all his success. मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि दोस्त को गंवाऊं अगर दोस्त कहे दोस्त को रिझाऊं के पल के बिछाऊं कदम वो जहां जहां रखे मैं दोस्त के पीछे पीछे भागूं मैं दोस्त के पीछे पीछे जाऊं ये बोर्ड वो एयरपोर्ट सारे टेंडर उसे मैं ही जितने प्रोजेक्ट्स विदेशों से मिले मैं जाऊं वहां पे करूं दिल तय वहां जहां पे एक पल भी ठहरूं मैं गुलसिता बनाऊं अगर दोस्त कहे न कोई जांच मैं कराऊं अमरीकी जांच भी छिपाऊं सदन को रोकूं विपक्ष को टोकूं मैं ईडी सीबीआई से भी को डांट लगाऊं मेरे दोस्त को कुछ न कहना मुझे उसके संग है रहना अगर दोस्त कहे यहाँ मैं अपना आइकॉनिक डायलॉग भाई किसको बोलूं यहाँ मैं अपना आइकॉनिक डायलॉग आज आप लोगों के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग जो मदद के लिए मुझ तक पहुंचना चाहते थे उनके साथ साइबर फ्रॉड्स होने शुरू हुए, पैसे निकाले गए उनके बैंक से। सो मैं सोच रहा था कि ये जो कहानी आप लोगों की कहानी है जो आपके लिए फिल्म बनाई गई है ये आप तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और 10 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आपके लिए पूरे देश के लिए पहले दिन फतेह का प्राइस रहेगा 99 रुपीज़, 99 रुपये में आप ये फिल्म देख पाएंगे क्योंकि इस फिल्म की पूरी कलेक्शंस की जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ चैरिटी में जाएगा। मेरी ये फिल्म की फतेह तभी होगी जब आप सब लोग इसे देखेंगे। बुक योर टिकट्स नाउ। आज आप लोगों के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट इस साल में अगर आपको मौका मिले किसी को माफ करने का तो आप किसको माफ करेंगे? मुझे कोई राइट नहीं किसी को माफ करने का। अगर मैं माफ कर सकता हूँ मैं अपने आप को भी नहीं माफ कर सकता हूँ तो मुझे क्या राइट है किसी को माफ करने का? माफी हम नहीं देते, माफी ऊपर वाला देता है। कोई भी गिले शिकवे झगड़े इस वजह से माफी तो आपको अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो तो उससे दूरी रहना बेहतर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस साल